أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليك آيات بينات وما يكفر بها إلا الفاسقون. أوكلما عاهدوا عهدا نبذه فريق منهم بل أكثرهم لا يؤمنون. ولما جاءهم رسول من عند الله مصدق لما معهم نبذ فريق من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء ظهورهم كأنهم لا يعلمون. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کی جائے بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے، جو ساری کائنات کا خالق، مالک، میرا اور آپ کا مربی ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑہ کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. قابل احترام بزرگوں، عزیز دوستوں، قرآن مجید کی تین آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، اور یہ تینوں آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. یہ تینوں آیتیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 پارہ نمبر 1 اس کی رکو نمبر 12 کی یہ آیتیں ہیں. کیونکہ پچھلے درس میں ہم نے رکو نمبر 12 کی شروعات کی ہے اور اس کی 2 آیتوں کا ہم نے لفظی ترجمہ، اس کی تشریح اور اس کی تفسیر سن چکے ہیں. اور اس کے آگے یہ 3 آیتیں ہیں، آیت نمبر 99، 100 اور 101، 99، 100 اور 101. یہ 3 آیتیں ہیں. یہ تینوں آیتیں معنی اور مفہوم کے اعتبار سے بڑی عام ہیں، مگر ان کا تعلق اوپر کی دونوں آیتوں سے ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ان تینوں آیتوں کا تعلق آگے کی آیتوں سے بھی ہے جو رکوع نمبر 12 کے اختتام تک چلتی ہے. گویا کہ یہ وسط اور درمیان سینٹرل آیتیں ہیں، معنی و مفہوم کے اعتبار سے عام ہے، مگر ان کا تعلق اوپر اور نیچے کی دونوں آیتوں سے، کیونکہ ایک ساتھ پورا ایک رکوع درس میں لیا نہیں جا سکتا تھا. اس لیے پہلے اس پارٹ کو ہم نے درس میں لیا جو 2 آیتوں پر جبرائیل علیہ السلام یا فرشتوں کے تعلق سے تھا. اس کے بعد یہ 3 آیتیں ہیں جو وسط کی ہے، درمیانی ہے. یہ تینوں کی تینوں آیتیں اپنے معنی اور مفہوم کے اعتبار سے پچھلے کی پوری آیتیں اور بالخصوص رکوع نمبر 12 کی 2 آیتوں سے تعلق رکھتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ یہ تینوں آیتیں آگے کے ایک واقعے کی طرف، قصے کی طرف، ایک مضمون سے بھی جڑی ہوئی ہیں جو اس کی آگے کی آیتیں ہیں جو رکوع نمبر 12 کے اختتام تک چلتی ہیں. لہٰذا آئیے ان کا لفظی ترجمہ دیکھنے سے پہلے ایک بار رکوع نمبر 12 کی ابتدائی 2 آیتیں جو آیت نمبر 97 اور 98 ہیں، 97، 98 اور 99، 3 آیتیں ہیں. ان تینوں آیتوں کا لفظی ترجمہ دیکھ لیں، ایک اعادہ ہم کر لیں تاکہ یہ 3 آیتیں سمجھ میں آ جائیں، اور مختصر سا ایک اگلی آیتوں کا جو ان 3 آیتوں کے بعد ہیں
उनका भी खुलासा हम देखते चले ताकि आने वाले दर्स में हमको ये 3 आयतों के बाद वाली आयतें समझने में आसानी। अल्लाह तबारक तआला ने कहा कुल मन कान अदुव्वन लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु अला क़ल्बिक बिइज़्निल्लाह मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप कहिए जो कोई भी दुश्मन हो जिब्राइल का, बेशक वो तो जिब्राइल ऐसे है नज़्ज़लहु अला क़ल्ब, कि उसने आपके दिल पर, आपके क़ल्ब पर उसने वही की, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से। वो वही कैसी है? मुसद्दिक़न लिमा बैन यदैहि, कि इससे पहले की किताबों की वो तस्दीक करने वाली है। व हुदन व बुश्रा लिलमुमिनीन, और वही की दूसरी सिफ़त यह है कि वह हिदायत और रहनुमाई करने वाली है और मोमिनीन के लिए बशारत सुनाने वाली है कि तुम्हारे लिए जन्नत है, अल्लाह की रजा तैयार है। मन कान अदुव्वन लिल्लाह व मलाइकतिही व रुसुलिही व जिब्रील व मीकाल फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफिरीन। फिर आगे अल्लाह ताला कहता है नंबर 98 में, बेशक जो कोई हो अगर वो अल्लाह से दुश्मनी करे, सारे फरिश्तों से दुश्मनी करे, सारे रसूलों से दुश्मनी करे, बिलखुसूस जिब्राइल और मीकाइल से दुश्मनी करे, फइन्नल्लाह अदुव्वुन लिलकाफिरीन, तो बेशक अल्लाह ऐसे काफिरों का जो दुश्मनी इख्तियार करते हैं, अल्लाह भी ऐसे काफिरों का दुश्मन है। ये 2 आयतें, इन दोनों आयतों में जैसा कि मैंने पिछले दर्स में बतलाया, बिलखुसूस जिब्राइल अलैहिस्सलाम का तज़किरा आया और कहा गया कि जो कोई जिब्राइल से दुश्मनी रखे गोया कि उसने कुफ्र किया, और जो जिसने कुफ्र किया वो काफिर ऐसा है कि अल्लाह भी उससे दुश्मनी रखता है। इसकी बहुत सारी वजूहात, बहुत सारे अहादीस मैंने आपके आगे रखी कि क्यों अल्लाह ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से दुश्मनी का जिक्र यहाँ पर कर रहा है। यहूदी बारहा आप वसल्लम के पास आया करते थे, यहूदी के उलमा आप वसल्लम के पास आया करते थे, बहुत सारे सवालात करते थे और कहते थे कि देखो ये वो सवालात है जो नबी के अलावा कोई नहीं जानता। सवालात करते आप वसल्लम उन्हें वो ऐसा ही जवाब देते जैसा एक नबी देना चाहिए, जैसा एक नबी के पास इल्म होता है, और उसकी तस्दीक भी करते कि वाकई आपने सही कहा, मगर फिर मुकर जाते, किसी न किसी बहाने से आप वसल्लम की नबूवत का इनकार कर देते। एक बार ऐसा ही हुआ कि आए, कहा कि हम 3 सवालात करेंगे, सवालात किया, आपने जवाब दिया, तो पूछा कि तुम्हारा साथी कौन है, मा साहिबुकुम, अल्लाह ने कहा मेरा साथी तो जिब्राइल है। कहा वो ज़ाक अदुव्वुन, वो तो दुश्मन है, ज़ाक अदुव्वुल यहूद, यहूदियों का दुश्मन है, मिनल मलाइका, सारे फरिश्तों में ये तो यहूदियों का दुश्मन है। हाँ, हम आपकी बात अब नहीं मानने के, क्योंकि आपका दोस्त जिब्राइल है और जिब्राइल हमेशा अजाब की, तकलीफों की ऐसी ही खबरें लेकर आता है। हम दोस्त रखते हैं मीकाइल को, वो अच्छी खबरें, पैदावार की, बारिश की, अमन अमान की और सलामती की खबरें लाता है। हम तो सिर्फ मीकाइल से दोस्ती रखते हैं। अगर आपका दोस्त मीकाइल होता तो हम आप पर नबूवत, हम आपकी नबूवत के कायल होते, और आपने जिब्राइल का नाम लिया तो हम आपके कायल नहीं होते, क्योंकि जिब्राइल तो हमारा दुश्मन है। ये यहूदियों के आलिम था। इसी तरह मैंने एक और हदीस पेश की थी कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन सलाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जो यहूदी थे, यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया, उनके इस्लाम कबूल करने का जो वाक्य था उसमें यही था कि वो आए आप से कुछ सवालात उन्होंने की, आप के सवालों के जवाब दिए। उसी दरमियान आप ने कहा कि अभी मुझे जिब्राइल ने तुम्हारे 3 सवाल के जवाब दिए हैं। तो ये नाम सुनते ही अब्दुल्लाह बिन सलाम जब भी उस वक्त तक मुसलमान नहीं हुए, उन्होंने कहा अरे ये तो यहूदियों का दुश्मन है। तो इस तरह बहुत सारी रिवायतों से हमें मालूम होता है कि यहूदी
ये जिब्राइल को अपना दुश्मन समझते थे और मीकाईल से दोस्ती रखते थे। तो अल्लाह ने कहा कुल मन कान अदुवुल जिब्रील, कहो ऐ वसल्लम आप कहो कि चाहे जो कोई भी हो, जिब्राइल से अगर उसने दुश्मनी रखी जबकि तो वो है कि उसने ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके कल्ब पर, उसने आपके दिल पर उसने वही नाजिल की अल्लाह के हुक्म से, और वो वही की सिफत है इससे पहले किताबों की तस्दीक करती है। यहूदियों के पास ईसा के बाद जो किताबें उनकी तो तस्दीक करती है, तुम्हारी किताबों की जो वही तस्दीक करती है और जो वही लेकर आता है तुम मुझसे दुश्मनी करते हो, और वही भी ऐसी के रहनुमाई करती है और मोमिनीन को बशारत देती है। फिर अल्लाह ने कहा जो कोई अल्लाह से, फरिश्तों से, रसूलों से, बिलखुसूस जिब्राइल और मीकाईल से दुश्मनी रखेगा, अल्लाह ने ये नहीं कहा कि अल्लाह उनसे दुश्मनी रखेगा, अल्लाह ने कहा अल्लाह ऐसे काफिरों से दुश्मनी रखता है। मालूम हुआ किसी एक फरिश्ते से भी दुश्मनी रखना या उसका इनकार करना या उसके वजूद का इनकार करना ये कुफ्र है, और अल्लाह ऐसे काफिरों से दुश्मनी रखता है। इसमें से एक बात याद आ गई जो पिछले 10 में बोल नहीं पाया। एक बहुत पुरानी तफसीर पढ़ रहा था, अब कुरान लिख रहे हैं साहब, लिखते लिखते जब वो फरिश्तों पर पहुंचे तो उन्होंने कहा कि ये एक ऐसी चीज है जिसको अभी तक मैंने देखा नहीं। लिखने वाले लिख रहे हैं कहा एक ऐसी चीज जिसको अभी तक मैंने देखा नहीं, इसलिए कोई मखलूक नहीं, इट इज एन पावर, ये तो एक ताकत का नाम है। क्या कहा? फरिश्तों को उन्होंने एक ताकत कह के वो वहां पर वो लफ्ज का माना और मफहूम बयान कर दिया, जबकि हकीकत अगर कुरान मजीद और हदीस पढ़े तो एक मखलूक है जो कि नूर से पैदा की गई है। 3 किस्म की मखलूकात हदीस में जिक्र आता है, एक नूरी मखलूक, दूसरी नारी मखलूक और तीसरी खाकी मखलूक। नूरी मखलूक वो है जो नूर से पैदा की गई, जिब्राइल अपने फरिश्ते, और नारी मखलूक ये है जिन्नात, जिन ये आग से पैदा किए गए, और खाकी मखलूक वो है जो मिट्टी से पैदा किए गए इंसान। कई जगह इनका तज़किरा आता है। तो गोया कि इन फरिश्तों का इनकार करना गोया कि सारे फरिश्तों का इनकार करना है, एक रसूल का इनकार करना गोया कि सारे रसूलों का इनकार करना है। जो इस इनकार में मुलविस हो वो काफिर है, और अल्लाह ऐसे काफिरों से दुश्मनी रखता है। इन 2 आयतों के बाद अब आइए आज के 10 की आयतों की तरफ बढ़े। अल्लाह कहता है वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, और यकीनन, लक़द के मानी बेशक के हैं, यकीनन, अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेशक हमने नाजिल किया है आपकी तरफ आयतें जो खुली हुई है, वाज़ह है। यानी अल्लाह तबारक तआला जब किसी बात को बयान करता है तो पूरी वजाहत के साथ, ऐसा नहीं कि कोई बात बयान कर दी, कोई बात छुपाई, कंफ्यूजन वाली बात अल्लाह की तरफ से नहीं होती। अल्लाह बिल्कुल वजाहत, पूरे डिक्लेरेशन के साथ, पूरे डिस्क्रिप्शन के साथ अल्लाह ताला बात को बयान करता है। वलक़द अंज़लना इलैका आयातिन बय्यिनात, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ जो कुछ भी नाजिल किया है वो ऐसी आयतें जो बय्यिनात है, खुली हुई है। मालूम हुआ कि कुरान मजीद की जितनी भी आयतें हैं सब की सब वाज़ह, क्लियर और बिल्कुल स्पष्ट है, इसमें कोई कंफ्यूजन है नहीं समझने वाली बात नहीं है। इस बात से मालूम हुआ कि वाकई अल्लाह का कुरान बड़ा आसान है समझने के लिए, पढ़ने के लिए, अमल करने के लिए, जिंदगी गुजारने के लिए। अब जो लोग ये कहते हैं कि सबसे मुश्किल किताब मतलब कुरान मजीद, सबसे टफ अगर कोई किताब है तो कुरान मजीद, इसको तो अच्छे अच्छे लोग समझ नहीं सकते, इस किस्म का दावा इस आयत से रद्द हो जाता है। अल्लाह कहता है ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमने आपकी तरफ जो चीज नाजिल की है वो आयतें ऐसी है जो बय्यिनात है, बिल्कुल वाज़ह और खुली हुई है। वमा यकफुर बिहा इल्लल फासिकून, बड़ी प्यारी बात अल्लाह ने, बड़ा प्यारा उसूल अल्लाह ने बयान किया आयत नंबर 99 के दूसरे टुकड़े में, वमा यकफुर बिहा इल्लल फासिकून, और नहीं कुफ्र करता इन आयतों के साथ, नहीं इनकार करता इन आयतों के साथ, नहीं मानता कोई शख्स इन आयतों को, कौन? इल्लल फासिकून, सिर्फ फासिक लोग ही इसकी आयतों से कुफ्र करते हैं, इसकी आयतों से भागते हैं, इसकी आयतों से एराज करते हैं, इसकी आयतों का इनकार करते हैं। कैसे लोग? फासिक। फासिक कैसे किसको है? फासिक
का एक आम मफहूम अरबी जुबान में लफ्ज़ी एतबार से कहा जाए, वो शख्स जो अहकामात से निकल भागे, कुछ हुदूद अगर उसको दिए गए हो, उन हुदूद से अगर निकल भागे तो उसको फासिक कहते हैं। बिलखुसूस फासिक कुरान मजीद और अहादीस उस शख्स के लिए इस्तेमाल हुआ है जो अल्लाह की नाफरमानी करे गुनाहों में, अल्लाह की नाफरमानी करे शिर्क और कुफ्र में, और अल्लाह की नाफरमानी करता रहे। अगर उसको एहसास हो जाए कि फला चीज गुनाह है, फला चीज नाफरमानी, फिर भी उस पर अड़ा रहे, ऐसे को कहते हैं फासिक। तो जिसमें कोई एतदाल नहीं होता, इसमें कोई इंसाफ नहीं होता, ऐसा फासिक, ऐसा गुनहगार। इल्लल फासिकून, वो शख्स जो फासिक है वही लोग इसकी आयतों का इनकार करते हैं। इस फासिक का एक और मफहूम तो कुरान को पढ़ेंगे तो उसका निचोड़ मालूम होता है। फासिक कुरान में उस शख्स के लिए भी लफ्ज इस्तेमाल हुआ है जो अपनी नफ्स की पैरवी करता है, जो अपने नफ्स की, अपनी ख्वाहिश की, अपनी हवा की जो शख्स पैरवी करता है, ऐसे शख्स को फासिक कहते हैं। यानी उसके पास कोई उसूल नहीं होता। अगर उसके दिल में आए तो कभी अच्छा काम कर ले, उसके दिल में आए तो कहीं बुरा काम कर ले, उसके बाद उसूल अच्छाई और बुराई का कोई किताब नहीं होती, कोई वही नहीं होती, कोई पैगंबर या नबी और रसूल नहीं होता। उसके बाद उसूल उसका नफ्स, उसका दिल होता है, उसकी लॉजिक होती है, उसका मंतिक होता है, उसकी ख्वाहिश होती है, उसका गुमान होता है। किसी भी चीज को समझता है तो अपनी ख्वाहिश, अपने गुमान और अपने प्रयास की वजह से किसी चीज को समझता है, ऐसे सबको फासिक कहते हैं। अगर उसको कोई उसूल बता दिया जाए तो वो कहेगा ये उसूल तो ठीक है मगर मेरी समझ में नहीं आता, इसलिए मैं तो ऐसा ही करूंगा जैसा मुझे समझ में आ रहा है। ऐसे सब कोई फासिक है जिसके पास कोई उसूल नहीं होता बल्कि नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करता है। इसी बात को अल्लाह तबारक तआला ने अगर आप सूरे नजम उठाकर देखें सूरा नंबर 53 53 उसमें अल्लाह तबारक तआला ने नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करने वाले के ताल्लुक से अल्लाह ने बड़े प्यारे अंदाज में कहा है, वमा लहुम बिही मिन इल्म, जो लोग फरिश्तों को लड़कियों जैसे नाम देते हैं और कहते हैं कि फरिश्ते औरतें हैं, अल्लाह उनके ताल्लुक से कहता है वमा लहुम बिही मिन इल्म। तो नज़्म सूरा नंबर 53 पारा नंबर 27 की ये आयत नंबर 28 है, इसमें अल्लाह कहता है वमा लहुम बिही मिन इल्म, इनके पास कोई इल्म, कोई दलील, कोई प्रूफ नहीं है। बल्कि कौन है, यत्तबिऊन इल्ला ज़न्न, ये तो सिर्फ वन की, गुमान की, कियास की पैरवी करते हैं। कोई उसूल नहीं इनके पास, एक गुमान है, एक अंदाजा है। वइन्ना ज़न्न, बड़ी प्यारी आयत है। बेशक ज़न्न, बेशक गुमान, बेशक कियास, कियास आ रही है, ला युगनी मिनल हक़्क़ि शैआ, हक के मुकाबले में ये कोई फायदा नहीं देती। यानी हक बात कोई हो, सच्चाई हो, कोई दलील हो, दलील के मुकाबले में, प्रूफ के मुकाबले में कियास, गुमान, ये कोई फायदा नहीं देता। तो जो फासिक होते हैं वो अपने गुमान और अक्ल पस्ती के पीछे चलते हैं, उसी की इत्तेबा करते हैं। इस वजह से उनके निगाह में कोई अहकामात की कोई वैल्यू नहीं होती। जहां मानना वहां मानेंगे, जहां नहीं मानना उसका इनकार कर देंगे। ये लफ्ज यहूदियों के लिए बिल्कुल बनो इस्राइल के बिल्कुल अल्लाह ने इस्तेमाल किया। और इससे पहले कि हमने आयतों में देखा कि यहूदियों को और बनो इस्राइल को अल्लाह ने कहा कि अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। आपके ताल्लुक से सारी अलामतें इन्हें मालूम है, यहाँ तक कि आपको अपने बच्चों की तरफ पहचानते हैं, फिर भी आपका इनकार करते हैं, आपकी नबूवत का इनकार करते हैं, आप पर ईमान नहीं लाते, क्योंकि ये दलाइल की नहीं बल्कि अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करते हैं। इससे आगे अल्लाह ताला आयत नंबर 100 में कहता है अवकुल्लमा आहदू अहदन नबदहू फरीकुम मिनहुम, लिहाजा जब कभी भी इन यहूदियों से, इन बनु इस्राइल से अहद लिया गया, अहदन पक्का अहद लिया गया, नबदहू फरीकुम मिनहुम, इनमें का एक न एक फरीक, एक न एक फिरका, एक न एक जमात ने उसको तोड़ी दिया, अहद के खिलाफ किया। क्यों? बल अक्सरहुम ला युमिनून, इनमें के अक्सर लोग ईमान ही नहीं रखते, ईमान ही नहीं अल्लाह की जात पर। जो कुछ इनके पास है बस वो उनकी नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी है, उनकी अटकल है, उनका गुमान है, उनका ज़न्न है जिसकी वो पैरवी करते हैं।
असल में इनके पास कोई ईमान नहीं है। ईमान वो है जो हिदायत की, रहनुमाई की, दलाइल की पैरवी करने का नाम ईमान है। जैसे अगर कोई शख्स कहे कि भाई मैं अल्लाह ताला को क्यों मानूं, जबकि वो तो मुझे दिखाई नहीं देता, जो चीज मुझे दिखाई देती है मैं तो उसी की पैरवी करूंगा, मैं तो उसी चीज को मानूंगा। अगर कोई ये शर्त लगाकर बैठ जाए तो यकीनन जानिए उसके बाद कभी ईमान नहीं आने का। उसके पास ईमान नाम की चीज कभी उसके दिल में सरायत नहीं करने की। क्यों? क्योंकि वो ये शर्त लगाए बैठा है कि मैं जब तक अल्लाह को, खुदा को देख न लूं मैं ईमान नहीं लाऊंगा, क्योंकि मैं हर चीज को देख कर ही मानता हूं। ये उसका उसूल है, ये उसका उसूल है, उसने ये उसूल तय किया। जबकि हकीकत ये उसका गुमान है, जबकि हक बात यह है, सच्चाई है कि दुनिया की करोड़ों चीजें ऐसे हैं जिनको वो बिना देखे तस्लीम कर रहा है। सिर्फ खुदा के ताल्लुक से, अपने रब के ताल्लुक से ये उसूल क्यों लगा रहा है कि देखूंगा तो ही मानूंगा। दुनिया कितने इस्तेमाल चीजें जैसे उससे अगर ये सवाल किया जाए कि क्या इंसानी जिस्म में फास्फोरस, सोडियम, आयरन, लोहा ये सब चीजें मौजूद है? अगर डॉक्टर है तो कहेगा हाँ मौजूद है। हम पूछे कि क्या आपने कभी अपने जिस्म में इन चीजों को देखा है? कहा नहीं, देखा नहीं, उनकी अलामतें मौजूद है, उसके प्रॉपर्टीज खून के अंदर मौजूद है, खून के मॉलिक्यूल्स में, ब्लड के मॉलिक्यूल्स में मौजूद है। हम कहेंगे जबकि तुमने उनको देखा नहीं, उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी सिफात की वजह से जब तुम उन्हें फास्फोरस कह सकते हो, सोडियम कह सकते हो, लोहा कह सकते हो, आयरन कह सकते हो, अलामतों की वजह से, तो रब को भी तो अलामतों से पहचानो कि वो दिखना जरूरी नहीं है। बगैर देखे जैसे तुम बहुत सारी चीजों को मान रहे हो, रब को भी तो बगैर देखे मानो। तो इस तरह जिसके पास ईमान नहीं होता वो अपने गुमान की पैरवी करते हैं। बल अक्सरुहुम इल्ला यअलमून, अल्लाह कहता है बल्कि अक्सर इनमें से ईमान वाले ही। वलम्मा जाअहुम रसूलुम मिन इंदिल्लाह, अल्लाह कहता है और लिहाजा जब भी कोई रसूल इनके पास आया जो कि अल्लाह की तरफ से था, कोई रसूल अपनी मर्जी से किसी के पास नहीं जाता, जो कि अल्लाह की तरफ से नुमाइंदा था, अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ था। जी रसूल कैसा? मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, के सच्चा बतलाता था उस चीजों का, उन चीजों का जो उनके पास होती। मुसद्दिकुल लिमा मअहुम, जो चीजें उनके पास होती उन्हीं को सच्चा बताता था। यानी यहूदियों के पास जब भी कोई रसूल आता और कहता है कि देखो जो किताबें तुम्हारे पास है, जिन अंबिया को तुम मानते हो मैं उन्हें सच्चा बतलाता हूँ, यानी पहले की चीजों को सच्चा बतलाने के बावजूद भी नबदा फरीकुम मिनल लज़ीना ऊतुल किताब, अल्लाह कहता है फिर भी तोड़ दिया, इनकार कर दिया इनके जमातों में से, इनमें से एक फिरका, एक जमात जिन्हें किताब दी गई थी, उन्हें फिर रसूल का इनकार कर दिया। रसूल के इनकार करने का कोई उसूल ही नहीं है। वसल्लम आप गमज़दा न हो, अगर ये आपको नहीं मानते हैं तो ये कुछ कमाल नहीं है इनका, ये कोई अनोखी बात नहीं है। इन्होंने तो अपने ही रसूलों को, बनो इसराइल के ही रसूलों का इन्होंने इनकार किया है, जबकि वो रसूल इनके सारे रसूलों को, सारी किताबों की तस्दीक करने वाले थे, तब भी उनका इनकार कर दिया। अगर आपका इनकार करते हैं तो कुछ कमाल नहीं है इनका, आप गमज़दा न हो। किताब अल्लाह, इतना ही नहीं नबियों को तो झुटलाया, ठुकराया ही ठुकराया। किताब अल्लाह, अल्लाह की किताबें जो इनके पास थी, जिन पर इनका ईमान था, जिन पर ये अकीदा रखते, जिन्हें अपने सीनों से लगाते, उन्हें उठाकर अपने पीठ पीछे कर दिया, पसे पुष्ट डाल दिया। ये उर्दू में इसका तर्जुमा होता है। अल्लाह की किताब को इन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया। तो अन्नहुम ला यालून, इतनी प्यारी आयत, अगर इसको मुसलमानों में फिट किया जाए तो हू बहु वैसा ही लगता है। तो अन्नहुम ला यालून, किताब वल्ला किताब का अपने पसे पुष्ट इस तरह डाल दिया जैसा कि वो उसको जानते ही न हो, पहचानते ही न हो। ला यालून कहते हैं जानते तो है मगर पहचानते नहीं। ये ला यालून कहते हैं जानते तो है मगर पहचानते नहीं। जैसा दुनिया में कई लोग हम जानते हैं, पहचानते नहीं, उनके ताल्लुक से मालूमात नहीं है। हाँ हर एक को जानते हो, हाँ फला है फला है फला है, उनके बारे में कोई खबर नहीं है, कोई मालूमात नहीं है, खबर नहीं है। वैसा ही अल्लाह ताला कह रहा है बनो इसराइल में भी ये बुराई थी
कि अल्लाह की किताब को पसे पुष्ट डाल दिया, तो मुराद कभी देखा ही नहीं खोल के, कभी पढ़ा ही नहीं, कभी इस पे अमल ही नहीं किया। जहां दिल बोला वहां एक आध आयत उचक ली, जहां दिल बोला एक आध आयत को ठुकरा दिया, और इस तरह इन्होंने पसे पुष्ट डाल दिया जैसा कि वो जानते ही न हो। अब आइए इस आयत को जरा उम्मत मोहम्मदिया पर भी इसका मुआवजा करके देख लें। क्या उम्मत मोहम्मदिया में भी यही मामला नहीं है कि किताब अल्लाह वराअ ज़ुहूरिहिम, कि अल्लाह की किताब इनके पीठ पीछे है, पसे पुष्ट है। रैंडमली आप मुसलमानों में से 10 लोगों को चुन लीजिए और पूछ लीजिए कि कुरान क्या है, कुरान में क्या है, तो कहें कुरान में क्या है हमें नहीं पता। क्यों? क्योंकि वो पीठ के पीछे है, कभी उसको अपने आगे रखकर उसकी इत्तेबा नहीं की। आगे रखेंगे तो उसके अहकामात पर अमल करेंगे, पीछे रखेंगे मतलब कुरान हमारे मुताबिक है। आज ही मुसलमानों के दावा कि इस्लाम हमारे मुताबिक चलता है। इस्लाम एक बहुत बड़ी ऊंची घाटी है, बहुत बड़ा ऊंचा पहाड़ है कि जब तक आसानी हो चलो, अगर ऊंचा पहाड़ आ जाए तो पगडंडी निकालो, एक बाजू से रास्ता निकालो। इस्लाम बहुत मुश्किल है, इस्लाम बहुत बड़ा गहरा समंदर है, नहीं समझ में आता। कि ऐसे ऐसे अकायद मुसलमानों में ही राइज कर दिए गए कि ये कहा जाता है कि इस्लाम मुसलमानों के मुताबिक चलता है, अल्लाह की किताब मुसलमानों के मुताबिक चलती है। इसीलिए अक्सर मुसलमानों को मालूम नहीं है कुरान में क्या है, नहीं मालूम है। जब कुरान में क्या है नहीं मालूम होगा तो दीन के मसाइल कैसे मालूम होंगे, दीन के अहकामात कैसे मालूम होंगे, हलाल और हराम की तमीज कैसे आएगी, कैसे आएगी। तो मिसाल के तौर पर जहां अल्लाह ने कहा कि सूअर का गोश्त हराम है, वहीं पर अल्लाह ने कहा कि गैरुल्लाह के नामजद किया गया खाना हराम है। ये मेरी आयत थोड़ी है, कुरान की आयत है। एक नहीं तो 4 जगह ये आयत रिपीट हुई है। आज भी मुसलमान को ये आयत मालूम नहीं है कि अल्लाह के अलावा किसी और के लिए कोई खाना नामजद किया गया, नॉमिनेट किया गया, वो हराम हो जाता है। उसका एक लुकमा भी खाना वैसा ही जैसे कि सूअर का गोश्त खाना, ये उसी लिस्ट में अल्लाह ने इसको बयान किया। वैसे खून को पीना जिसका हराम है उसी तरह ये हराम है, मुसलमानों को मालूम ही नहीं है, नहीं जानना चाहते हैं। उससे इस तरह अचंभे में है जैसे ये आयत मालूम ही नहीं होगी। यानी कुरान है क्या चीज, इससे अनजान है। मुसलमानों का आज यही हाल है, कुरान के अहकामात नहीं मालूम, कुरान की आयतें नहीं मालूम, और अगर पेश कर दे कोई तो अच्छा कुरान में है, हमने तो कभी नहीं सुना, हमारे बाप दादा ने तो कभी नहीं सुना। यानी ये दलील पेश करते हैं कि ना हमने सुना ना हमारे बाप दादा ने सुना। आप अनोखे लोग आ गए जो अनोखी बातें हमारे आगे बयान कर रहे हैं। यानी जो अनोखा आ गया वही गुमराह है, जो बाप दादा चला आया है वही हक है। ये उसूल बयान कर दिया गया। और कभी कभी कहते हैं जनाब आप जो बातें बयान कर रहे हैं आपके जैसे मानने में कितने हैं, गिने चुने। हमारे बाप दादा जो चला आ रहा है ये लाखों लोग हैं, अब बताओ कौन सही है। यानी हक का मेयार कुरान नहीं रहा, हक का मेयार अक्सरियत और अकलियत रह गई। जो ज्यादा है वो हक पर है, जो कम है वो गुमराह है, वो हक पर नहीं है। ये मेयार लोगों ने बना। क्यों? अल्लाह किताब को पसे पुष्ट डाल दिया, किताब को कहा कि हमारे पीछे चल, हम तेरे पीछे नहीं चलने वाले, इसलिए उसको पसे पुष्ट डाल दिया। और अब मालूम ही नहीं है कि वो किताब में है क्या, उसको जानते तो है मगर पहचानते नहीं, उसके अहकामात मालूम ही नहीं। कोई शख्स आज ये कह ही नहीं सकता कि अगर सूअर का गोश्त हलाल है, मैं कहूँ कि मैं नहीं मानता, बताओ मेरे को कुरान में क्या है। एक भी मुसलमान ऐसा नहीं तो कुरान की वो आयत बता सके जहाँ पे सूअर का गोश्त हराम हो, क्योंकि बहुत आम हुक्म है ना, सूअर के गोश्त के हराम होने का हुक्म आम है, हर मुसलमान इस बात को मानता है। मैं पूछूं कि कहाँ है बता दो, एक भी मुसलमान नहीं बता सकता, सब के सब हाथ उठा लेंगे क्योंकि पढ़े ही नहीं, उसके ऊपर मेहनत की ही नहीं। अल्लाह की आयतों को समझने में याद रखने में मेहनत है ही नहीं, बाकी सारी मेहनत दुनिया की भागदौड़ में, किसी की ताबेदारी के अंदर है। फला कुछ कर दिया, फला को मान लिया, फला का सुन लिया, कुरान का कभी नहीं सुनेंगे, नहीं कुरान के पीछे कोई मेहनत करेंगे, इतना ही नहीं। तो एक और मामूली सी बात, शराब हराम है, कितने मुसलमान मानते हैं इस बात को, कितने? 100 के 100। मैं पूछूं बताइए एक आयत बताइए कुरान में जहां ये लिखा हो कि शराब पीना हराम है, नहीं बता सकते आप। ये बात मालूम ही नहीं मुसलमानों को कि कुरान में कहीं पे भी शराब हराम है का लफ्ज है ही नहीं, है ही नहीं। ये कब मालूम होगा? जब आप कुरान का गायर मुतालिया करेंगे। पर अब आप शराब हराम कैसे हुई, कैसे हुई? हम तो बचपन से मानते आ रहे हैं, आबो अजदाद मानते आ रहे हैं कि शराब हराम है इस्लाम में,
कुरान में है, एक भी आयत मौजूद नहीं है कि जिसमें ये लिखा हो कि शराब हराम है। अब मुसलमान जब कुरान को पढ़ेंगे तो अपने इल्म के लिए दलील दे सकेंगे, अब मालूम ही नहीं तो पढ़ेंगे नहीं। इससे आसान तो ये है कि सुअर और गोश्त हराम है तो उसकी दलील नहीं दे सकते। तो बताइए कि कुरान को इन्होंने आगे रखा है कि पीछे रखा है? कुरान के तरफ से क्या कहना रखते हैं कि कुरान की हम ताबेदारी कर रहे हैं या कुरान हमारी ताबेदारी कर रहा है? पसे पुष्ट डालने का मतलब है कि कुरान हमारे मुताबिक चलता है। और ऐसे है कि जानते ही नहीं कि कुरान क्या चीज है, कुरान क्या अहकामात देता है, क्या अच्छाइयां बयान करता है, किस चीज से रोकता है, बिल्कुल नहीं जानते। बस इन्हें तो वही चीज सिखाई गई है कि जो कहा जाए वो करो, जो कहा जाए वो करो, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। सिर्फ अंधी अकीदत के साथ आंखें बंद करके किसी चीज के पीछे चढ़ाने का एक रिवाज मुसलमानों में छोड़ दिया गया। अब वो न कुरान देखेंगे, न हदीस किताबें देखेंगे, न आपने कभी सीरत पढ़ेंगे, न सहाबा की कभी सीरत पढ़ेंगे, न कभी इस माहौल में जाएंगे। क्यों? वहां जाने से बाप दादा की जो जायदाद चली आ रही है वो सब की सब ढह कर रह जाएगी। इल्म जो अंधी अकीदत से आया हुआ था, क्योंकि इल्म है ही नहीं, वो पूरा ढह जाएगा। उसी जगह पर मजबूत इमारतें कुरान मजीद और अहदीस आ जाएंगी। इस तरह एक वो सिस्टम जो लोगों को झुकाकर अपने पेट पालने का जो रस्म रिवाज चल रहा है वो सब का सब ढह जाएगा। इसलिए जो बड़े हैं वो कभी इन चीजों को जाने नहीं देंगे, और जो छोटे हैं वो जाना नहीं चाहते। जाएंगे तो पढ़ना पड़ेगा, पढ़ेंगे तो अमल करना पड़ेगा। एक बड़ा टेंशन। अल्लाह कहता है यही तो बीमारी यहूदी में भी थी, जिसकी वजह से तुम्हारे नबी का उन्होंने इनकार किया और कहा कि हम तुम्हारी नबूवत को मानते ही नहीं, सब कुछ सही है तुम्हारा, सब कुछ सही है पर हमको मानना ही नहीं। क्यों? फासिक लोग थे, नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी करते थे। ये थी आयत नंबर 21, इसके ऊपर जा लिखा हुआ है, जा मतलब दायरा है। आयत तो खत्म हो गई है मगर मफहूम के एतबार से, माने के एतबार से अभी आयत आगे चल रही है। आगे आयत कौन सी है? आगे की आयतों में अल्लाह ने कहा ये यहूदी ऐसे ही अपने नफ्सानी ख्वाहिशात की पैरवी नहीं करते कि जहां देखा वहां मान लिया, जहां देखा वहां इनकार कर दिया। इन्होंने सिर्फ बहुत सारे अंबिया का इनकार किया, बल्कि बहुत सारे अंबिया को इन्होंने कत्ल भी किया। इतना ही नहीं, बहुत सारे अंबिया को इन्होंने काफिर कहा है। क्या कहा है? बाज़ अंबिया को उन्होंने काफिर कहा है और कहा कि वो तो नबी थे ही नहीं। मानते हैं उनको मगर कहते हैं कि वो नबी है ही नहीं। सुलेमान अलैहिस्सलाम का तज़किरा आगे आता है, कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम काफिर थे, ये यहूदियों का अकीदा था। कहते थे कि जादूगरों में सबसे बड़े जादूगर थे, जादूगरों में सबसे बड़े जादूगर थे। अल्लाह कहता है कि उनका ये अकीदा गलत है। सुलेमान अलैहिस्सलाम जादूगर नहीं, अल्लाह के बरगज़िदा पैगंबर, सेलेक्टेड प्रोफेट, चुनिंदा पैगंबर थे। ये शान नहीं कि जादूगरी सीखे। अल्लाह ताला से जादू के ताल्लुक से, जादूगरों के ताल्लुक से क्या है, क्या ये हारूत मारूत क्या चीज है जिसका तज़किरा इस आयत नंबर 102 में अल्लाह ताला करता है, रुकू में 12 में इसका तज़किरा करता है, उसका अल्लाह ने आगे बयान किया। ये सारी आयतें इन्हीं आयतों से, इन 3 आयतों से जुड़ी हुई है। ये सब कुछ मानते हुए भी असल में इनके पास ईमान नहीं है, ये तो अपने नफ्स की पैरवी करते हैं। ये फासिक लोग हैं, ये अल्लाह के हुक्म से बाहर निकले हुए नहीं। तो अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला कुरान के जरिए से हमारे दिलों की गुमराही को दूर करे। कुरान से अल्लाह ताला हमारी सही रहनुमाई, सही सोच, सही अकीदा अल्लाह ताला हमें दे। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।